Dear participants, welcome in our new lecture, Meaning, Concept and Nature of Tribal Market. In previous class, we discussed about tribal market. In this lecture, we know that concept and nature of the tribal marketing. Tribal marketing in India offer a very unique opportunity to connect with a indigenous community and with a rich and डाइवर्सिटी कल्चरल सेगमेंट. हम कह सकते हैं कि जनजातीय विपणन एक इस प्रकार का व्यापार है जो जनजातियों या आदिवासियों के समुदाय को बाज़ार में लाने और उनके प्रोडक्ट को बाज़ार में बेचने के लिए लाया जाता है. फर्स्ट पॉइंट, इंट्रोडक्शन टू ट्राइबल marketing. In this PPT, we know that tribal marketplace are a colorful, bell hanging made of customs, craft, cultural interaction and a commerce. These unique market provide an insight into the way of the life and product produced by indigenous population. This marketing is very important and there is the lot of the benefit for the society and lot of the benefit for the Indian economy, such as it is helpful for the economic empowerment for tribal communities. It is also preserve and promote traditional craft and knowledge for the new generations. It is also helpful for the fosters cultural exchange and try to contribute to biodiversity conservation between through sustainable practices. It is also encourage to the indigenous communities to connect with main society with your product, with your faithfulness, with your new innovations in your local raw materials. In this unit, also we know about the tribal marketing challenges, tribal marketing segmentations, tribal marketing emotional connections, and also try to focus what is the future prospects of the tribal marketing in coming scenario. We know that tribal marketing aims to create meaningful connection with consumers by understanding their cultural context and fostering a sense of belonging and loyalty. Tribal marketing also require a deep understanding of the community's history, deep understanding with traditions, deep understanding with social dynamic, as well as a commitment to building long-term relationship based on the mutual respect and trust. Tribal marketing beyond goes with the help of the traditional demographic instead of the focusing on age, income or location. There are the important features for the nature of marketing. First point is community focus. Community focus means it is as marketing to tribes, groups united by shared interest. It's about understanding what are groups doing. ट्राइबल मार्केटिंग जो होता है वो कम्युनिटी को प्रमोट करता है, प्रयास करता है एक कम्युनिटी ग्रुप में एक क्वालिटी वाले व्यक्ति रहें जो मिलकर उस काम को करते हैं. इट इज आल्सो ट्राई टू हैव ए इम्पॉर्टेंट नेचर लाइक शेयर वैल्यू. शेयर वैल्यू मीन्स बिलीव, ट्रस्ट. The key is to bring into line your brand with the tribe's value. This builds trust
एंड सेंस ऑफ बिलोंगिंग। जो ट्राइबल मार्केटिंग का नेचर होता है वो ये बताता है कि आप एक वैल्यू के साथ काम करें। उस प्रोडक्ट में उस कम्युनिटी के लोग प्रयास करते हैं आई विल डू गिव बेस्ट। एंड नेक्स्ट इज इमोशनल कनेक्शन। ट्राइबल मार्केटिंग goes for the attached with emotional connection. It's about creating a feeling of communities and share tribal thoughts, tribal value, tribal discipline. Why it is important? It is important due to the reason of the brand loyalty, due to reason of the advocacy, and it is also very helpful for the future. With the rise of the online communication, tribal marketing have a important role and have a play important role in the marketing due to the reason of growth of the online communication. हम ये कह सकते हैं कि ट्राइबल मार्केटिंग विभिन्न प्रकार के जनजातियों के रिसोर्सों का, विभिन्न प्रकार जनजातियों के बायोडाइवर्सिटी का, विभिन्न प्रकार जनजातियों के लोकल हेरिटेज को समेटता है और ये प्रयास करता है कि वहाँ पर उपलब्ध सभी प्रकार के रिसोर्सों का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कर सकें। हम कह सकते हैं जिस प्रकार एग्रीकल्चर फार्मर या शिल्पकार जो उस प्रोडक्ट को बाज़ार में लाने के लिए रॉ मटेरियल को अपने घर पे बनाता है और सीधे कस्टमर तक पहुंचाता है, क्योंकि उन दोनों के बीच में मीडिएटर नहीं होता है, जिससे ये प्रोडक्ट और सस्ता और अच्छा रहता है। टाइप्स ऑफ ट्राइबल मार्केटिंग। टाइप्स ऑफ ट्राइबल मार्केटिंग, इट इज़ 3 टाइप्स। फर्स्ट इज प्रोडक्ट बेस्ड टाइप्स, सेकेंड इज लाइफ स्टाइल टाइप्स एंड थर्ड इज ideological tribes. Product based tribe, it is formed around specific product or brands such as Apple or Harley Davidson riders. Product based जो ट्राइब्स होते हैं वो विशिष्ट उत्पादों या ब्रांड को आसपास एकत्रित करके उसको प्रमोट करने के लिए प्रयास करते हैं। जैसे बेस्ट एग्जांपल हार्ले डेविसन बाइक है। हार्ले डेविसन बाइक ये बताता है कि अगर आप उस बाइक को चलाना चाहते हैं तो आपको ऐसी जगह चाहिए जो कि खाली हो, जो कि जहाँ पे भीड़ या जन समुदाय के लोग कम से कम हो। इसी प्रकार लाइफ स्टाइल टाइप, दैट इज सेंटर्ड अराउंड लाइफ स्टाइल आर हॉबीज like fitness, like foodies, etc. It means कुछ लोग ऐसे होते हैं जो लाइफ स्टाइल के बेसिस पर किसी प्रोडक्ट को सेंट्रलाइज करते हैं या अपनी फिटनेस के लिए ध्यान देते हैं या खाने के शौकीन होते हैं। तो इस टाइप के प्रोडक्ट भी हम मार्केट में ला सकते हैं जो कि नॉन ऑर्गेनिक प्रोडक्ट की कैटेगरी में आ सकते हैं। एंड थर्ड इज ideological tribes. It is based on shared belief, value or ideology such as environmental friendly etc. इसका मतलब हम कह सकते हैं कि कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जो कि सस्टेनेबिलिटी की बात करते हैं या पॉलिटिकल एक्टिविटीज की बात करते हैं, ताकि वो प्रोडक्ट एक बिलीफ, एक वैल्यू या किसी थॉट पर आधारित होते हैं। ये कई प्रकार के हो सकते हैं, जैसे कि हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट या फिर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट या फिर कलेक्शन मार्केटिंग या वाटर रिसोर्स मार्केटिंग या लोकल फॉर वोकल रिलेटेड मार्केटिंग। इन बाज़ारों में या इन ट्राइबल बाज़ारों में विभिन्न उत्पादों के प्रोडक्ट होते हैं जो कि निर्माता और उपभोक्ता दोनों को एक साथ लाते हैं और वो प्रोडक्ट का मैक्सिमम यूटिलाइज करने का प्रयास करते हैं। फॉर्मेशन ऑफ ट्राइबल मार्केट, जनजातीय बाज़ारों का गठन। इन बाज़ारों का
गठन कैसे होता है या ये बाजार बनते कैसे हैं। द ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया, जिसको ट्राइफेड कहा जाता है, ये 1987 में इस्टेब्लिश हुआ था अंडर द मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1984. This body work for the social and economic development of the tribal people of the country, but market formation is determined on the basis of the different interest, on the basis of the different activity. First point is common interest. Tribes from around common interest, common passions or common needs, they formate a group for your product. और यानी कह सकते हैं कि कभी कभी सामान्य रुचियों के कारण जनजातीय समुदाय अपनी ज़रूरतों या अपनी जुनून या अपने रुचि के आधार पर अपना एक ट्राइबल मार्केटिंग का ग्रुप बना लेते हैं और प्रोडक्ट का निर्माण करते हैं और उसको प्रयास करते हैं कि हम मार्केट में ले जाएं। कम्युनिकेशन चैनल is a digital platform and social media platform that is play a crucial role in connecting tribe members and facilitating different type communication to the other societies. With the help of the communication channel, tribe society connect to mainstreams for your product. And third point is shared experience. It is a also important factor जहाँ पर जनजातीय कम्युनिटी के लोग एक दूसरों के साथ अपनी चुनौतियों को या अपने अनुभव को या अपने क्वालिटी को एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं और अगर उन सभी के बीच एक अच्छा ट्यूनिंग बन जाता है तो वो अपने समुदाय के उस प्रोडक्ट को बढ़ाने के लिए एक ग्रुप का फॉर्मेशन करते हैं और अपने प्रोडक्ट को मार्केट में ले जाने का प्रयास करते हैं। इस तरह ये भी एक शेयर्ड एक्सपीरियंस एक ट्राइबल मार्केटिंग फॉर्मेशन का अच्छा प्रकार है जो धीरे धीरे पॉपुलर हो रहा है। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ बिहेवियर ऑफ ट्राइबल मार्केटिंग, यानी किस तरह ट्राइबल मार्केटिंग में जो लोग होते हैं उनका बिहेव कैसा होना चाहिए। विच टाइप बिहेवियर फॉर हेल्पफुल फॉर द ट्राइबल मार्केटिंग। फर्स्ट पॉइंट इज ब्रांड लॉयल्टी। हम सभी जानते हैं अगर किसी प्रोडक्ट को मार्केट में लाना है तो उसका एक ब्रांड लॉयल्टी होना चाहिए, जैसे कि BMW, मर्सिडीज, ये सब ऐसे कार्स हैं जो कि मार्केट में कभी भी अपना एडवर्टाइजमेंट नहीं करते हैं क्योंकि इनका एक ब्रांड है, इनका एक लॉयल्टी है, इनका एक क्वालिटी है। उसी तरह ब्रांड लॉयल्टी इज ए प्ले इम्पॉर्टेंट रोल टू बिलिंग टू एडवोकेट फॉर देयर फेवरेट प्रोडक्ट। इट इज़ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी और इट इज़ ट्राइबल मेंबर्स ट्राई टू क्रिएट ए स्ट्रॉन्ग ब्रांड लॉयल्टी फॉर योर फेवरेट प्रोडक्ट। वो चाहते हैं कि जनजातीय समुदाय मजबूत ब्रांड या निष्ठा के साथ अपने प्रोडक्ट को मार्केट में प्रदर्शित करें ताकि उनके पसंदीदा ब्रांडों की मार्केट में एक डिमांड रहे। सेकंड पॉइंट इज वर्ड ऑफ माउथ। मौखिक रूप से या ट्राइब्स जो होते हैं वो चाहते हैं कि उनके प्रोडक्ट को रिकमेंडेशन मिले, उनके प्रोडक्ट को पीयर रिव्यू मिले, उनके प्रोडक्ट को लोग ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलर करें विद द हेल्प ऑफ द वर्ड ऑफ माउथ, विद द हेल्प ऑफ द फ्रॉम वन पर्सन टू अदर पर्सन। क्योंकि अगर ये चीज़ ट्राइबल मार्केटिंग के बिहेव में आ जाएगा तो आपका प्रोडक्ट बहुत जल्दी एक मार्केट से दूसरे मार्केट में जाने में आसानी होगी। थर्ड पॉइंट इज engagement. Member of tribal markets actively engage with brands and each other, contributing to a vibrant community. It is tribal marketing's main feature to try to indicate his members to focus his product
and try to contribute maximum for his product to attachment with his product for the marketing engagement. हम कह सकते हैं कि ट्राइबल मार्केटिंग में जो लोग भी हैं वो सब उस प्रोडक्ट के साथ अपना एक इंगेजमेंट दिखाएं, अपना एक लॉयल्टी दिखाएं और प्रयास करें कि ज़्यादा से ज़्यादा उस प्रोडक्ट के साथ जुड़े रहें, ताकि वो प्रोडक्ट कम्युनिटी में बहुत ही तेज़ी से 1 to 1 या 1 मार्केट टू अनदर मार्केट में धीरे धीरे सर्कुलेट होता रहे. ओवरव्यू ऑफ ट्राइबल communities in India. It is an important factor for the tribal marketing. India is home to diverse range of the tribal community. भारत एक ऐसा देश है जहाँ पे विभिन्न प्रकार की डाइवर्सिटी है ट्राइबल कम्युनिटीज़ में. It is also known as आदिवासी or scheduled tribe. It is already discussed in previous lectures. These communities contribute significant importance to the country with the help of the cultural, with the help of the social, with the help of the historical richness. Here in this PPT, here is some important point which is the play important role for the tribal communities. First point is diversity. डाइवर्सिटी मीन्स भारत में 700 से ज़्यादा ट्राइबल ग्रुप हैं, जिन हर ग्रुप का एक अपना अलग अलग नेचर है, हर ग्रुप का एक अपना अलग ही रिमार्केबल डाइवर्सिटी है. रिमार्केबल लैंग्वेज, कस्टम, ट्रेडिशनल स्टाइल, लाइफ स्टाइल जो है, जो उन दोनों को या उन सोसाइटी को एक दूसरे से अलग करता है. तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उस डाइवर्सिटी को मेन मार्केट में लाने की ज़रूरत है. जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन, इट इज़ ए आल्सो इम्पॉर्टेंट फैक्टर, क्योंकि यहाँ पर झारखंड में एक अलग ही जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन है, तो नॉर्थ ईस्ट में एक अलग जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन है, और दोनों के लिविंग स्टैंडर्ड, दोनों का लाइफ स्टाइल, दोनों का ट्रेडिशनल, दोनों का लैंग्वेज अलग अलग है. दैट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट पॉइंट फॉर द ट्राइबल मार्केटिंग, एंड दिस इम्पॉर्टेंट क्वालिटी इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर द ट्राइबल मार्केटिंग. लिंग्विस्टिक एंड कल्चरल डाइवर्सिटी, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, लैंड एंड फॉरेस्ट, these are the important point, those are the play important role in the tribal communities. Same as social structure and socio-economic features is a important factors, those are the tribal communities in India. Understanding the tribal communities, it is our responsibility to know about the essential for fostering inclusive development and preserving the tribal heritage for the society. We can say different tribal communities जो कि इस देश में रहते हैं, उन सब के यूनिक ट्रेडिशन और उन सब के यूनिक लाइफ स्टाइल या उन सब के यूनिक सोशल एंड कल्चरल एस्पेक्ट्स को बचाने के लिए हम सभी को उनको मेन स्ट्रीम के साथ जोड़ने के लिए उनके प्रोडक्ट को या उनके स्टाइल्स को ट्राइबल मार्केटिंग के हेल्प से मेन स्ट्रीम से जोड़ने का प्रयास करना चाहिए. चैलेंजेज इन ट्राइबल मार्केटिंग, देयर इज द लॉट ऑफ द चैलेंजेज इन द ट्राइबल मार्केटिंग. फर्स्ट इज द लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इन ट्राइबल एरियाज. ट्राइबल मार्केटिंग इज आल्सो नोन एज community-based marketing, or it is focused on targeting a specific group of person who share common interest, common values, common features. All these important features indicate they can stay with these features. हम कह सकते हैं कि ट्राइबल मार्केटिंग के लोग कॉमन इंटरेस्ट, कॉमन वैल्यू, कॉमन फीचर्स या कॉमन क्वालिटी के साथ अगर रह रहे हैं तो वो किसी प्रोडक्ट को
के ग्रोथ को बढ़ा सकते हैं। लेकिन इस चीज़ को प्रमोट करने के लिए इट इज़ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू आइडेंटिफाई हिज प्रॉब्लम्स, his segmentation, because it is the primary challenge in tribal marketing. Identify and segment his tribal group. These group may not always be easily available in the market. They come in the market with his thought, with his value, with his quality, and it is our responsibility to analyze his language and try to remove different type cultural barriers with the help of the different activities, with the help of the maintaining different rules and regulation. And it is our responsibility to build up trust, to build a good techniques to attach tribal communities. And one is an important challenge, that is technology and media. ट्राइबल सोसाइटी के लोग हमेशा टेक्नोलॉजी और मीडिया से काफ़ी दूर रहते हैं। उनको प्रयास करना चाहिए कि वो हमारे मेन स्ट्रीम के साथ जुड़ सकें और इस चैलेंजेस को दूर करके ट्राइबल मार्केट को मेन स्ट्रीम के मार्केट के साथ जोड़ने का प्रयास करें। इन दिस पीपीटी वी कैन से these challenges and approaching tribal marketing have a respect and a genuine commitment to understanding and serving the targeted community. Understanding tribal consumers, ये जानने का प्रयास करना चाहिए कि ट्राइबल कंज्यूमर का क्या बिहेव होना चाहिए। Understanding tribal consumer behavior involve examining how individual belonging to specific social or cultural group make purchasing decision। यानी जो कंज्यूमर बिहेवियर है वो किस प्रकार के सोशल या कल्चरल ग्रुप की सहायता से परचेज का डिसीजन ले रहा है। इंटरैक्ट विद ब्रांड्स, किस ब्रांड के साथ वो इंटरैक्ट होना चाहता है। एंड इंगेज इन कंजम्पशन प्रैक्टिसेस, किस प्रकार के प्रोडक्ट के साथ वो इंगेज होना चाहता है जिसका कि कंजम्पशन कर सके। इट इज़ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू आइडेंटिफाई दिस टाइप कंज्यूमर बिहेवियर। फर्स्ट पॉइंट इज कल्चरल आईडी। प्रयास करना चाहिए हर कंज्यूमर का कल्चरल आइडेंटिटी उसकी क्या है। अगर कोई उस सोसाइटी का है जिनका ग्रुप लाइफ स्टाइल या लैंग्वेज सेम मिलता है तो 100% वो उस प्रोडक्ट के साथ जुड़ने का प्रयास करेगा। इसी प्रकार सोशल नॉर्म्स एंड इन्फ्लुएंस, इट इज़ द इम्पॉर्टेंट पॉइंट फॉर द आइडेंटिफाई ऑफ द ट्राइबल कंज्यूमर बिहेवियर। Tribes have their own set of social norms, their own value, their own discipline। हर ट्राइब सोसाइटी का अपना एक अलग नॉर्म्स होता है, अपना एक अलग सोसाइटी के रूल्स होते हैं जिसके बेसिस पर उनको आइडेंटिफाई करना ज़रूरी है, तभी वो उस मार्केट के साथ अटैच हो सकते हैं। कम्युनिटी इंगेजमेंट, कम्युनिटी इंगेजमेंट मीन सोशल कनेक्शन। इट इज़ our responsibility to identify community engagement with the help of the events, with the help of the sponsorship, with the help of the online forum, etc. Next point is communication channel. Tribes may have preferred communication channel and platform where they interact and seek information। हमारी आपकी जिम्मेदारी बनती है कि डिफरेंट टाइप्स के जो ट्राइब्स हैं उनके कम्युनिकेशन चैनल को पहचानने का प्रयास करें और उस कम्युनिकेशन चैनल पे ही जानने का प्रयास करें कौन ट्राइब्स किस ट्राइब के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेक्ट कर रहा है या किस प्रोडक्ट के बारे में ज़्यादा सर्चिंग कर रहा है, और उस प्रोडक्ट को पहचानने का प्रयास करें ताकि उन दोनों को एक दूसरे के साथ लाया जा सके। एडेप्टबिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। ट्राइबल कंज्यूमर बिहेवियर कैन
have a time related to adaptability and flexibility. Both are the special features. Those are helpful for the identify consumer behavior. इसी तरह ethical consideration and research and localization. These 3 points is also helpful for the identify tribes consumer behaviors. Next is effective strategy for tribal marketing. It means we can say there are the lot of the strategy for the growth of the tribal marketing. If we want to growth for the tribal marketing, it is our responsibility to develop cultural value, belief, and different type specified quality related to the tribal communities. कुछ ये important point हैं, इफेक्टिव स्ट्रेटजी है ट्राइबल मार्केटिंग के लिए जो कि बहुत ही हेल्पफुल है, जिससे कि ट्राइबल मार्केटिंग बहुत ज़्यादा डेवलप कर सकता है आने वाले समय में. जैसे कल्चरल अंडरस्टैंडिंग, इट इज़ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू नो ट्राइबल related cultural understanding. It is our responsibility to engage in community. It is our responsibility to make different types representative related to tribal communities and try to customize product and services. Try to engage in digital line. Try to they engage in digital platform. Try to develop education and empowerment related activities. Try to give the different type facilities. They know what is the importance of the sustainability and social responsibility. ये कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो कि बताते हैं कि अगर इसको हम लोग इफ़ेक्टिव रूप से फॉलो करें तो जो ट्राइबल मार्केटिंग की स्ट्रेटजी है वो बहुत ही तेज़ी से इम्प्रूव होगा, जिससे हमारी ट्राइबल सोसाइटी बहुत तेज़ी से डेवलप करते हुए ट्राइबल मार्केटिंग एक अच्छा स्थान पा सकता है. सक्सेसफुल ट्राइबल मार्केटिंग कैंपेन इन इंडिया. गवर्नमेंट प्रयास की है कि कुछ डिफरेंट टाइप्स के सक्सेसफुल कैंपेन किया जाए जिससे कि ट्राइबल मार्केटिंग को लोग समझ सकें. जैसे कि गो ट्राइबल कैंपेन बाय ट्राइबल इंडिया, ये एक गवर्नमेंट का इनिशिएटिव प्रोग्राम है जो कि हाउ बी एम्पावरिंग ट्राइबल्स बाय प्रमोटिंग देयर डिफरेंट टाइप्स प्रोडक्ट, हाउ दे ऑफर्ड डिफरेंट सोसाइटीज़. इस कैंपेन में बताया जाता है और वो अपने प्रोडक्ट को ज़्यादा से ज़्यादा मेन स्ट्रीम को बताने का प्रयास करते हैं. ये जो कैंप है ये मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के द्वारा लगाया जाता है. उसी तरह शोकेसिंग ट्राइबल प्रोडक्ट ऑन ग्लोबल प्लेटफॉर्म, इट इज़ ए आल्सो इम्पॉर्टेंट पार्ट फॉर द प्रमोटिंग ट्राइबल प्रोडक्ट्स. आदि महोत्सव, इट इज़ ए सेलिब्रेटिंग ट्राइबल कल्चर, और ये गवर्नमेंट के द्वारा कराया जाता है जिसको कि ट्राइफेड प्रमोट करता है कि हम आदि महोत्सव को कैसे सेलिब्रेट करें या ट्राइबल कल्चर को कैसे सेलिब्रेट करें ताकि वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा जान सकें. ITC सोशल फॉरेस्ट्री प्रोग्राम, इट इज़ ए आल्सो इम्पॉर्टेंट प्रोग्राम. दोज आर वेरी हेल्पफुल फॉर द ट्राइबल मार्केटिंग. हनी बी नेटवर्क, इट इज़ ए आल्सो वेरी इम्पॉर्टेंट प्रोग्राम. सेवा भारती फॉर द प्रमोटिंग एजुकेशन एंड हेल्थ केयर. डायरेक्ट कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट फॉर द एम्पावरिंग ट्राइबल कम्युनिटीज़ एंड फ्यूचर ट्रेंड्स इन ट्राइबल मार्केटिंग. इमर्जिंग अपॉर्चुनिटी एंड चैलेंज. वर्तमान समय में लोगों का जो प्रिडिक्शन है, लोगों का जो अटैचमेंट सस्टेनेबिलिटी के लिए हो रहा है या लोगों का जो अटैचमेंट एथिकल कंसिडरेशन के लिए हो रहा है, जो कि ये बताता है कि फ्यूचर में ट्राइबल मार्केटिंग का एक स्पेशल स्थान होगा सोसाइटी में ड्यू टू द रीजन ऑफ क्रॉस जनरेशनल एंगेजमेंट.
due to the reason of virtual communities and events, due to the reason of experiential marketing, due to the reason of UGC, user generated content, due to the reason of the community centric platform. These are the important points. Those are promoted by government for the development of the tribal marketing. In coming class, we can say the future of tribal marketing will be special features by deeper personalization, by communities building, cultural relevance and ethical consideration, all facilitated by advancing technology and involving consumer expectation, adaptability and a genuine commitment to understanding and serving tribal communities will be key for brand to in global market. और हम कह सकते हैं कि आने वाला समय ट्राइबल मार्केट का ही होगा, क्योंकि जिस तरह हम लोग धीरे धीरे फिर से गांव की तरफ मूव कर रहे हैं, जो कि दिखा रहा है कि ट्राइबल मार्केटिंग का एक फ्यूचर ब्राइट है और ये 100% एक नया मार्केट की बात करेगा। बस ज़रूरत है कि हम सभी के सभी लोग कलेक्टिव एक्शन लें ताकि ये मार्केट ज़्यादा से ज़्यादा सस्टेनेबिलिटी के साथ डेवलप कर सके। थैंक यू।